Hi guys, welcome to the next video and of React and Node series and इस वीडियो में हम देखेंगे schemas के बारे में। अच्छा तो schemas है क्या? तो चलो पहले mongoose के वेबसाइट पे ही चलते हैं और देखते हैं कि schemas होता क्या है, schemas का मतलब क्या होता है। ठीक है। So defining your schema, देखो लिखा है everything in Mongo starts with a schema. Each schema maps to a MongoDB collection and defines the shape of the documents within the collection. Okay. And what type of collection? See, here is some uh, what can I? Here is some example of it. Like check it. So there is a schema object. There is an object which has a schema. Actually, when we use schema, we import it from Mongoose. Okay, we import it from the Mongoose. We import this module from the Mongoose, and after that we use that in a variable, and create a new object where we provide what kind of information will be there and what will be the type of that information. Okay, see here there is a title which is string. There is a author, like the title, which means the name of the book title, whatever it is. It is in string. Author, the name of the author, basically it will be in string. Then body of the body about the, like the subject of the book, that will be in a string. Comments, like whatever someone is written and when it is been commented, that will be in that will be the type. See their body is string, comment of the, sorry, body of the comment, and date is practically a date, so its format will be date. And here is also a different comment that defined, that's this date is also different. Remember, this date is not equals to this date. Okay, this object is not equals to this object, always remember this. Okay, whenever someone asks you a question that if one object is identical to another, even though they have the same name, same style, same pattern of everything, identical pattern that you have seen in the object, still the answer will be false. With even if it's an array or an object, the answer will be false. No, an object cannot be identical to another object because they have a type safe facility. Okay, by type safe, I don't doesn't mean that particularly it has to be a type number or something like that. No, by type safe I mean that key value pair type safe. Okay, and see, whenever here is a definition that each key in in on the code of block schema defines the property in our documents which will be cast to its associated schema type. For example, we have defined property title which will be cast to the string schema type, and property date which will be cast to a date schema type. Then, like I said, all these datas प्रेजेंट हियर, जितने सारे डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, सब कुछ का एक टाइप स्कीमा मतलब होता है कि हम एक टाइप प्रोवाइड कर देते हैं कि कैसा डेटा हमारे पास आएगा या फिर हम पोस्ट करेंगे, किस टाइप का डेटा आएगा और या फिर किस टाइप का डेटा हम पोस्ट करेंगे, वो हमें दिखा देता है ये स्कीमा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने कोड पे एक छोटा स्कीमा लिख के रखा है। जैसे मोंगूस ये है, मैंने रिक्वायर किया है मोंगूस फ्रॉम मोंगूस। ओके, तो हाँ, और राइट नाउ हम जब स्कीमा लिखते हैं तो हम स्कीमा का स्टाइल कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट स्कीमा को इंपोर्ट करते हैं मोंगूस से, या फिर हम मंगूस को इंपोर्ट करते हैं मोंगूस से, और उसके बाद हम एक वेरिएबल में क्या लिखते हैं, न्यू। इट्स अ न्यू, क्या है न्यू, हमेशा याद रखना कि कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन होता है, और ये यहाँ के लिए ये स्कीमा का कॉन्स्ट्रक्टर है। तो हम जब भी न्यू कीवर्ड देते हैं तो एक नया मेथड कॉन्स्ट्रक्ट होके आता है, और जहाँ पे, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जावा की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसका इसी पैटर्न में
देखो इसी पैटर्न में और भी सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, जो कि एक और इसमें स्टोर होके रहेंगे। तो क्या ये ऑब्जेक्ट इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ आइडेंटिकल होगा? नहीं, क्योंकि हर बार ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हर बार, और उसका हर एक की पेयर वैल्यू में बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। हालांकि वैल्यू आइडेंटिकल हो सकता है, डिफरेंसेस सब हर बार होगा, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, मोंगूस डॉट स्कीमा करके हम उसके सारे वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन क्या करते हैं, डिफाइन यहाँ पे करते हैं टाइप्स। मतलब कि स्कीमा का टाइप कैसे होता है कि हम जैसे यहाँ पे मैं आ गया और मैंने बोला कि मुझे एक नया स्कीमा बनाना है, और उसमें क्या क्या रहेगा, ईमेल रहेगा, नेम रहेगा, एज रहेगा। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक और बना दे सकता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया फोन, सॉरी, अरे, अबे, फोन। देन मैंने इसको यहाँ पे दे दिया, इसका टाइप क्या होगा, मैंने बोल दिया इसका टाइप होगा नंबर, और कितने होंगे, मैक्स 10, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 10 होगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट नाम दे दूँ तो, और याद रखना कैमल केस नेमिंग हमेशा करना, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है वैसे एज पे क्या ही करोगे, पर एक अगर कुछ इस तरह का हो तो कैमल केस नेमिंग हमेशा करना। अगर फंक्शन भी लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया है जो एक मेथड के वैल्यू को इनके ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है उसका वैल्यू तो हमें चाहिए ना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यूजर का जो यहाँ पे स्कीमा इससे लिया, ठीक है। नाउ हम ये जो कंट्रोलर है ना, देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे जो यूजर देख रहे हो तुमको, यहाँ पे जो यूजर दिख रहा है तुम्हें, हाँ, ये यूजर हमारा कहाँ से आ रहा है, यूजर स्कीमा से आ रहा है, ठीक है, यूजर स्कीमा से आ रहा है सिंपली। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोलर पे जाके मैं कहूँगा कॉन्स्ट यूजर, ओके, सॉरी, यूजर रिक्वायर, सॉरी, रिक्वायर, और यहाँ पे दे दूंगा स्कीमा स्लैश यूजर। तो यहाँ से पूरा का पूरा यूजर उसने ले लिया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे डेटा को चेक करेगा, जैसे मैंने बोला था कंट्रोलर यहाँ पे वो डेटा को चेक करके जो डल रहा है यहाँ पे डेटा, वो उसका जो फंक्शनैलिटी है, मतलब वहाँ पर जो डेटा डल रहा है, क्या उसमें कोई एरर है, या फिर जो डेटा डालने का टाइम जो आएगा उसमें कोई एरर आ रहा है क्या, कुछ मिस हो रहा है क्या, ये सब चेक करने के लिए ही हमें कंट्रोलर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये रहा यूजर स्कीमा। स्कीमा में देखिए तो जैसे मैंने बोला था कि अगर जैसे कभी हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, तो अगर हम किसी वेबसाइट पे जाएं और चेक करें तो हमें समझ में आएगा कि लॉगिन फॉर्म जब भी हम करते हैं तो, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भी हम भरते हैं तो कुछ चीज़ें फील्ड होती है जो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि ईमेल हो गया, मोबाइल यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ शायद इम्पोर्टेंट ना भी हो, ठीक है, एड्रेस इम्पोर्टेंट ना भी हो, पर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर, these things are important. So what happens here, since these things are important, what is done that जब भी हम क्या करते हैं, जो तो जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो हम उसको क्या करवा देते हैं कि जैसे नेम है, ठीक है, यानी नेम हो या यूज़र नेम हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया यूज़र नेम, ठीक है, नेम की जगह दे दिया मैंने यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमेशा हमेशा ही रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक तो यूज़र नेम आपको क्रिएट करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे,
जो हमें प्रोवाइड करेगा आपकी इंफॉर्मेशन को और आपके एक पर्टिकुलर नाम को, कि कौन है ये बंदा, एक स्पेसिफिक आईडी के साथ। ठीक है। और टाइप हो रहा है अपना स्ट्रिंग, और उसका वैल्यू है रिक्वायर्ड वैल्यू है ट्रू। ये स्कीमा की मदद से हम ये चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें वो वैल्यू रिक्वायर्ड करनी है कि नहीं। ठीक है। और इसकी वजह से हम इसकी वैल्यू को जाके बाद में फ्रंट एंड के साथ मिला के चेक भी कर सकेंगे कि अगर इसका वैल्यू रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो हमें इसके वैल्यू को देना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि हमको वो इनपुट वैल्यू फिल करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद होगा ईमेल। मैं यहाँ पे नाम चेंज करके थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने सिर्फ ईमेल लिख के रखा था, अब यूज़र ईमेल कर दिया तो और भी बेटर हो जाएगा। देखो, हर चीज़ का टाइप यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। क्या किया प्रोवाइड? स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। नाम का भी स्ट्रिंग हो गया। एज का हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, सॉरी, नंबर दे दिया। यूज़र ईमेल का अपने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, क्योंकि हम स्ट्रिंग ही देंगे। रिक्वायर्ड कर दिया ट्रू। यूनिक होगा, ऑब्वियसली यूनिक होगा। लोअर केस होगा, ऑब्वियसली लोअर केस होगा। ठीक है। तो अगर हमें लोअर केस नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हमको लोअर केस, अपर केस, लोअर केस जो भी रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो, और अगर हमें लोअर केस ही चाहिए तो हम इसको ऐसे ही दे देंगे, सिर्फ लोअर केस को रख देंगे। क्या है इसे? और वैलिडेटर, वैलिडेट एक बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक फंक्शन रिटर्न, एक फंक्शन को होल्ड करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वैलिडेटर फंक्शन होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम जस्ट वैलिडेशंस को चेक करेंगे ई बैकएंड पे, कि ये जैसे मैंने कोई रेजेक्स को डाल दिया, वहाँ पे चेक हो गया, या फिर कोई ऐसा कुछ कुछ भी वैलिडेशन हमने चेक कर लिया, ताकि बाद में हमें उस चीज़ की इशू ना हो। ठीक है। और प्रॉप्स अगर वैलिड, और मैसेज क्या होता है कि अगर वैलिडेशन के लिए वो चीज़ नहीं हुआ, तो जो चीज़ हम वैलिडेट कर रहे हैं, तो वो अगर वैलिडेट नहीं हो रहा है हमारे इनपुट पे, यानी कि फ्रंट एंड पे जब हम डेटा को डाल रहे हैं बाई, या फिर रजिस्टर कर रहे हैं फॉर्म पे, तो कहीं पे इसका वैलिडेट नहीं हो, तो क्या होगा? तब ये एक मैसेज को हमारा यहाँ पर रेंडर करवाएगा, जो एक कॉल बैक फंक्शन है। मैं बोला था, मैंने बार बार बोला था कि एरो फंक्शंस, एक्सप्रेशंस, लेक्सिकल चेंज, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है। और उसके साथ हमारा ऑपरेटर्स, दिस दिस कॉन्सेप्ट हो गया, और ऑपरेटर्स भी हो गया, और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस भी हो गया। हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, स्पेशली एसिंक्रोनस ऑपरेशन, लेक्सिकल चेन एंड एरो फंक्शंस। ठीक है। कि हम यहाँ पे करेंगे क्या स्पेशली। तो ये मैसेजेस का जो हमारा यहाँ पे फंक्शन बन के रेडी होता है, ये कुछ कुछ नहीं बल्कि एक मैसेज की तरह होता है, कि अगर ये वैल्यू, ये यहाँ पे वैलिडेट नहीं होता है, तो ये मैसेज ये रिटर्न कर देगा स्कीमा। ठीक है। अगर ईमेल वैलिडेट नहीं हो रहा है तो उसके बाद आ गया एज, जिसका टाइप होगा नंबर, मिनिमम 18 होना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन नंबर टाइप हो रहा है नंबर, मैक्स 10। Yeah, so number of digits you have to apply, it will should be max 10. Okay. एंड देन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको, ये जो यूज़र है इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मॉडल कर दे रहे हैं, और इसको इसके साथ हम जोड़ दे रहे हैं। और इसको अगर मैं चाहूँ तो एक्सपोर्ट भी कर दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मॉडल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, सॉरी, तो एक्सपोर्ट भी हो गया। बस अब ये डेटा चला जाएगा। अब इसको मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ चेक करने के लिए कि ये डेटा कहाँ पे होगा। स्पेशली ये जाता है कंट्रोलर्स में, जहाँ पे कंट्रोलर्स चेक करते हैं कि जब ये फंक्शन पुट हो, जब इसका जो वैल्यू है इस फंक्शन में पुट हो रहा है, यानी कि इनपुट में हम किसी रजिस्ट्रेशन फील्ड में डाल रहे हैं, तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, तो कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, और किस तरह के, अगर इसका वैल्यू, किसी ने गलत ईमेल डाला है, तो ये कंट्रोलर चेक करेगा कि ईमेल के साथ इसका जो रिक्वायर्ड फील्ड है इसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं। यानी कि ईमेल का जो वैलिडेशन हमने यहाँ पे डाल के रखा है, ईमेल का वैलिडेशन, वो जाके जो इनपुट वैलिडेशन, जो इनपुट हम दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो ये एरर थ्रो करेगा। इसलिए तो हमने यहाँ पे
कंट्रोलर पे एसिंक अवेट का और ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको एसिंक्रोनिसिटी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। एसिंक्रोनिसिटी एसिंक्रोनस ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये चेक करने में मदद करती है कि जब तक ये वैल्यू मतलब चेक नहीं हो जाता, ये वैल्यू रेंडर नहीं हो जाता, ये का फंक्शन काम करता रहेगा और ये चेक करता रहेगा, तब तक बाकी फंक्शन सारे रेंडर होके जाएंगे जो कि एसिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, तो हमें ये याद रख के हमें करना है और हमें समझना है कि इसकी ज़रूरत है, कि एसिंक्रोनिसिटी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए जावास्क्रिप्ट के वो सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और स्कीमा आपको याद हो जाएगा कि स्कीमा क्या है। स्कीमा कोई जटिल कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस एक ऐसी क्या बोलता हूँ, क्या बोलूँ इसको, लाइक एक टाइप प्रोवाइड कर देना, एक रेगुलेशंस भेज देना कि जब भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका एक रेगुलेशंस या रूल्स और रेगुलेशंस होता है ना उसकी, ठीक उसी तरह एक चीज़ ये स्कीमा भी होगा कि एक पर्टिकुलर रेगुलेशन की तरह काम करेगा, जहाँ पे यूज़र का टाइप क्या होगा, मतलब उसका क्या किस तरह का वो वैल्यू होगा वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे ईमेल किस तरह का वैल्यू होगा वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे एज किस तरह का वैल्यू होगा, मोबाइल फ़ोन किस तरह का वैल्यू होगा, मतलब मोबाइल फ़ोन नंबर एक्चुअली, तो वो सेट हो जाएगा। और मैक्स कितना चाहिए, यानी कि वो 18 नंबर की होगी, या मोबाइल फ़ोन 10 नंबर का 10 डिजिट का मोबाइल फ़ोन होगा, या 18 डिजिट का मोबाइल फ़ोन होगा, डिपेंड करता है कंट्री वाइज। हमारे यहाँ पे 10 होता है तो मैंने मैक्स 10 ही दिया है। ठीक है, एंड या स्कीमा इससे ज़्यादा टिपिकल कुछ है नहीं, बस हमको याद रखना है कि टाइप और इसको, और जब भी हम स्कीमा लिखे तो मोंगूस स्कीमा हम मोंगूस के बिना लिख नहीं सकते। हमें याद रखना, मंगूस के बिना हम कभी स्कीमा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अलग से स्कीमा लिखना हो तो इशूज बहुत सारे होते हैं, जो भी हो। और जब भी स्कीमा हमारा स्कीमा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें यूज़र को इस जो मंगूस का जो स्कीमा लिखा है उसको एक मॉडल पे डाल देना होता है, ताकि उसका एक की पेयर वैल्यू बन जाए। यहाँ पे जो मॉडल है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका एक की पेयर वैल्यू बना दिया। जैसे यूज़र इसका की है और यूज़र स्कीमा वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका एक वैल्यू बन के रहेगा। मतलब हर बार जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके लिए एक वैल्यू यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, इसी तरह से दैट्स सो दैट्स इट अबाउट स्कीमा, और बाकी चीज़ें हम देखेंगे अब बाद में। तब तक के लिए बाय।